Bismillahirrahmanirrahim, Satkain Education Services. Assalamu alaikum to all dear class 2 students. I hope you all are fine and safe at your home. Class 2, today we will continue the revision of the same chapter that we had started yesterday. Chapter 10, Air. Let's open your book, page number 71. Today we will continue our chapter from the heading Air has smoke. Students, now I am going to read this paragraph. Smoke comes out whenever we burn something. Factories and vehicles also give out smoke. This makes the air impure. Our lungs need fresh air to remain healthy. Next paragraph. Air carries germs. Tiny living things called germs keep floating in the air. When people cough or sneeze without covering their mouth, the germs from their body come out and mix with air. These germs enter our body through breath and we fall sick. So everyone should cover their mouth while coughing or sneezing. Next paragraph. Germs are so small that we cannot see them with our eyes. We can see them only through a microscope. A microscope is an instrument which makes things appear big so that we can easily see them. Next page, page number 72. We need air. Dust, smoke and germs make the air impure. Breathing impure air makes us ill. To get clean air, we must plant more trees around us, keep the windows open to let in fresh air, play in open places, not breathe in the smoke that people release while smoking. Use a handkerchief to cover our mouth while coughing or sneezing. Okay, that's enough for today. Now I will explain you these paragraphs. Class 2 students, in our previous video, we have already understood that air has many gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide. Air has dust particles. Air has water vapor. In the same way, air has smoke. Smoke. From where smoke comes? Smoke comes out when we burn something. Smokes come out from the factories and industries, and vehicles like cars, buses, motorbikes, vans, these vehicles also produce smoke. This smoke is mixed with the air and makes the air impure. And breathing impure air is not good for our health. To remain healthy, we need fresh air to breathe. बेटा ओके बेटा, इस पैराग्राफ में आपको क्या बता रहे हैं कि जब भी हम कोई चीज़ जो है जलाते हैं, मतलब आग जलाते हैं या कोई भी किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं, जैसे वुड लकड़ियाँ जला रहे हैं या फिर कोई कागज़ जला रहे हैं या कचरे को जलाया जाता है बहुत सारी जगहों पे,
तो क्या इससे क्या बनता है, स्मोक बनता है। स्मोक किसे कहते हैं, धुएं को। और धुआं किस तरह बनता है, मतलब किसी चीज़ को जलाने से। इसके अलावा बेटा फैक्ट्रीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में काम चल रहा होता है, तो जो मशीन्स वहाँ पे यूज़ होती हैं वो भी स्मोक प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ से भी धुआं बाहर निकल रहा होता है। धुआं बहुत सारा जो है मतलब ज़्यादा धुआं जो है ब्लैक कलर का वो बाहर आ रहा होता है इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में से, क्योंकि वहाँ पे जो मशीनरीज यूज़ हो रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा बेटा बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, ठीक है, जो कि स्मोक प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा बेटा जो व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियाँ जो चल रही होती हैं रोड्स पे, वो आपने देखा होगा, आपको नज़र भी मतलब ये आपने खुद अपनी आंखों से भी देखा होगा कि गाड़ियों में से भी धुआं निकल रहा होता है, ठीक है। और ये धुआं जो है बेटा कहाँ शामिल हो जाता है, हमारे पूरे एनवायरनमेंट में, यानी कि हमारे पूरे माहौल में ये धुआं शामिल होता है। तो इसकी वजह से एयर में भी धुआं शामिल हो जाता है और ये एयर को क्या बना देता है, इम्प्योर बना देता है, यानी कि एयर को आलूदा कर देता है। और बेटा अगर हम ऐसी हवा में सांस लेंगे जो हवा क्लीन नहीं है, मतलब वो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ये मतलब ये हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें सेहतमंद रहने के लिए बेटा साफ़ फ्रेश हवा में जो है बेटा सांस लेनी होती है। इससे हमारे लंग्स जो हैं वो हेल्दी रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये सारी चीज़ें हवा को क्या बना देती है, इम्प्योर बना देती हैं, ठीक है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एयर कैरीज जर्म्स। एयर हैज़ germs. What are germs? Germs are tiny living creatures that keep floating in the air. When people cough or sneeze, germs from their body mix with the air, and when we breathe air, these germs enter into our body, so we fall sick. To avoid it, we should always cover our mouth when we coughing or sneezing. Germs are small creatures. We cannot see them to our naked eyes. When we want to see them, we need a microscope. Microscope, what is microscope? Microscope is an instrument which help us to see tiny things like germs. This makes tiny things appears big, so we can see them easily. बेटा जर्म्स किसे कहते हैं? जर्म्स कहते हैं बेटा जरासीम बैक्टीरिया, जो कि हमें नज़र नहीं आते, हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन हमें पता है वो हर वक्त हवा में मौजूद होते हैं। मतलब हवा में फ़्लोट करना, यानी कि फ़्लोट करना, तैरना, ठीक है। और जब बेटा कोई भी लोग हों जो खांसते हैं या छींकते हैं और वो अपना माउथ को कवर नहीं करते, तो उनकी बॉडी के जितने जरासीम होते हैं, मतलब उनकी बॉडी के जो जरासीम होते हैं वो हवा में शामिल हो जाते हैं। जब आप खांसेंगे या छींकेंगे और आपका माउथ भी कवर नहीं है, तो सारे जर्म्स जो हैं हवा में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। और जब हम उसी हवा में सांस लेंगे, मतलब हम वहाँ पे ही सांस लेंगे, हमें तो नज़र नहीं आ रहे कि जर्म्स हैं या नहीं है हवा के अंदर, लेकिन अगर हम सांस लेते हैं और फिर हमें भी खांसी स्टार्ट हो जाती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि उनकी बॉडी के जो जर्म्स हैं वो हवा में शामिल हो गए। अब हमने उस हवा में सांस ली, इस तरह वो हमारी बॉडी के अंदर भी एंटर हो गए और हम भी बीमार पड़ गए। तो बेटा इसलिए जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो अवॉइड क्या करें कि आपका फेस जो है, आपका जो माउथ है वो कवर ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो माउथ है कवर ना, आप हैंकरचीफ यूज़ किया करें ताकि आपकी बॉडी के जो जर्म्स हैं वो हर जगह नहीं जाएं, ठीक है। अच्छा बेटा, जर्म्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, जो कि हमें नज़र भी नहीं आते। जर्म्स को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है? इंस्ट्रूमेंट है जो टाइनी जो चीज़ें होती हैं, बहुत टाइनी चीज़ें जो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, जिनको कहा जाता है, जो हमें नज़र नहीं आती, उनको बड़ा करके माइक्रोस्कोप में जब हम उनको देखते हैं तो वो हमें विजिबल कर देता है, जूम कर देता है और हम उन चीज़ों को ईज़िली देख सकते हैं, ठीक है। तो जर्म्स बहुत टाइनी क्रिएचर हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते, और उनको देखने के लिए जर्म्स को हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट पेज नाउ।
we need clean air. To remain healthy, we need pure air. Things like dust, smoke, germs makes the air impure, and breathing in impure air make us all ill. To get fresh air, we need to plant more trees, because trees help us to give us fresh air. We should play in open places. We should not breathe in the smoke that people release while smoking. And whenever we cough or sneeze, we should use handkerchief to cover our mouth. बेटा आपको पता है कि एयर जो है हमें साफ़ हवा की ज़रूरत होती है ताकि हम हेल्दी रह सकें. मैंने आपको बताया कि अगर हम ब्रीथ करते हैं इम्प्योर हवा में, यानी कि आलूदा हवा में, आलूदा कहते हैं बेटा जिसमें गंदगियाँ शामिल होती हैं, आलूदगी शामिल होती है, जैसे कि स्मोक है, जर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें, डस्ट है, ये सारी चीज़ें हवा को इम्प्योर कर देती हैं, गंदा कर देती हैं. ठीक है, तो इसमें जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे लंग्स को भी ख़राब करती हैं. ठीक है, ये हमें अनहेल्दी कर देती हैं. और हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्लीन एयर की. तो क्लीन एयर के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, और प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स हेल्प करते हैं हमें साफ़ हवा प्रोवाइड करने में. कैसे? जब बेटा प्लांट्स अपना फूड बना रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. आपको पता है ना ये बात कि प्लांट्स अपना फूड जो है ख़ुद बनाते हैं. तो जब वो फूड बनाते हैं तो बेटा वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. ऑक्सीजन जब वो रिलीज़ करते हैं तो वो हवा में शामिल होता है, जो कि एयर को साफ़ कर देता है. ठीक है, तो वो हवा जो जहाँ पे ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे हवा बहुत साफ़ होती है. ठीक है, इसके अलावा बेटा आप अगर खेलते हैं तो आपको ओपन प्लेसेस में खेलना चाहिए. और अगर आप किसी इंसान को देखते हैं कि वो स्मोक कर रहे होते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि स्मोक करते हैं, तो आप ऐसी जगह पे ना जाएं, क्योंकि जब वो स्मोक करते हैं तो वो हमारे लिए वैसे ही अनहेल्दी है. स्मोक यानी कि धुआं, वो हम उस तरफ जाएंगे तो, और उस तरफ जाके बेटा हम सांस लेंगे जहाँ पे वो धुआं आ रहा है स्मोकिंग का, तो वो आपको और अनहेल्दी करेगा. उसके जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर होंगे. इसके अलावा अगर आपको कभी खांसी हो जाती है, या आप जो है बेटा कभी आपको छींक आ जाती है, तो हमेशा आपको चाहिए कि आप हैंकरचीफ यूज़ करें. इसके अलावा आपको चाहिए बेटा अपने हाथ जो है उनको बार बार वॉश किया करें, ताकि जर्म्स आपके हाथों पे ना रहें. जर्म्स हमारे हाथों पे भी होते हैं, और वो हमारे हाथों के थ्रू बेटा हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं. अगर हमने हाथ नहीं धोए और कोई चीज़ खा ली है तो फिर इस तरह जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गए, इस तरह हम बीमार हो सकते हैं. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको चाहिए कि आप ख़ुद भी साफ़ रहें और जो है साफ़ हवा में सांस लें. ठीक है, ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे. लेट्स कम टू आवर कॉपी वर्क. Okay students, let's open your science copy. First of all, take a new page. On a new page, write down the date and homework. Task. I am giving you task that you have to complete by yourself. 3 questions I am giving you. Number 1. Name 3 things which produce smoke. You have to write the name of any 3 things which produce smoke. Question number 2. Name an instrument that we use to see germs. You have to write the name of instrument which we use to see the germs. Okay. Question number 3. Name 3 things which make air impure. You have to write the name of 3 things which make air impure. You have to complete these questions by yourself in your science copy in very good handwriting. Okay, class 2. Till then, take very good care of yourself. Allah Hafiz.